जय भारत डियर ऑल अद्वितियंस, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अच्छे से सारे नोट्स जो प्रिपेयर कर रहे होंगे और साथ में आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. सो इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दैट components of the endoplasmic reticulum that includes three parts. One is cisternae and vesicles, which is studied with the ribosomes, and it is mainly found in the RER. And the other one is tubule, right, which is without ribosomes and it is considered as a smooth endoplasmic reticulum. So today we are going to discuss about the types of ribosomes, and that types of ribosomes are of two types. One is RER, which is studied with the ribosomes, and the other one is SER, means smooth endoplasmic reticulum, right. RER is more, we can say that it is made up of cisternae and vesicles, and SER is made up of tubules. ओके तो अब जो हम इसकी डिटेल जो ले रहे हैं, सपोज जो फर्स्ट जो है दैट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इफ यू टॉक अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन this rough endoplasmic reticulum, as we know that rough endoplasmic reticulum is studied with the ribosomes, and that is why it seems a rough surface, right. And this rough endoplasmic reticulum has a ribosomes on its surface. तो ये जो है वो ribosomes है, right. And that ribosomes has two subunit, one which is known as larger subunit and the other one is smaller subunit, right. Larger subunit will remain in contact with the surface of cisternae, right, and the smaller subunit which covers the larger subunit. Okay, in case of eukaryotic cell we very well know that smaller subunit is 40S and the larger subunit is 60S, and together it becomes 80S, right. Okay, दूसरी चीज जो larger subunit है that has one groove in it, one lumen in it, through which whatever the protein is synthesized in ribosomes that will enter into the lumen of cisternae. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए this is a polypeptide chain, right, which is formed by amino acid. Many amino acid is joined together by a peptide bond and form what? Polypeptide chain. So this is the polypeptide chain which is synthesized by these ribosomes, and now it enters into the lumen of cisternae. So basically that ribosome is studied on the surface of cisternae, and that ribosomes attach with this cisternae surface with one of the protein which is known as ribofourin, right. This is the important one that you need to remember. तो ribosomes जो हैं वो cisternae की surface के ऊपर किसके थ्रू अटैच है? दैट इज अटैच थ्रू वन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, राइट. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इट इज वन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, और वो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा है? रिबोफोरिन. कौन सा प्रोटीन है? रिबोफोरिन. ओके, तो प्रोटीन जो है वो सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन में किस कहां पे आएगा? इन द ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्नी. फिर वो सिस्टर्नी जो है उसका क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन, और उससे क्या फॉर्म होंगे? वेसिकल्स. दैट वेसिकल्स आल्सो हैज अ पॉलीपेप्टाइड चेन. फिर वो वेसिकल जो है दे आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? सिस फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. फिर वो उसका मॉडिफिकेशन होता जाएगा और वो प्रोटीन जो है वो सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी फॉर्म में जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली वो प्रोटीन जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, राइट. Okay, so RER is closer to nucleus but obvious because RER, which is a cisternae, formed by evagination of the nuclear membrane. तो वो कहाँ पे रहेगी? न्यूक्लियस के नजदीक. SER कहाँ पे रहेगी? Towards the plasma membrane, right? Okay, it has more cisternae and vesicles. RER जो है उसमें ज्यादा क्या होगा? cisternae and vesicles, ठीक है, और वो ही दोनों पार्ट जो है that is studied with the ribosomes. RER was called ergastoplasm by Garnier. गार्नियर जो साइंटिस्ट थे, दे कंसिडर और दे कॉल्ड दिस RER एर्गेस्टोप्लाज्म. एर्गेस्टोप्लाज्म क्यों बोला? क्योंकि सिस्टर्नी जो है उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसकी सरफेस पे क्या है? रिबोसोम्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वेसिकल्स. तो वेसिकल्स के अंदर क्या है? वेसिकल्स के अंदर है प्रोटीन, ठीक है, और वो प्रोटीन जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ एर्गेस्टिक मटेरियल बाय गार्नियर, और इसलिए उसने वो वेसिकल्स को क्या बोला? एर्गेस्टोप्लाज्मिक वेसिकल्स. और वो किससे फॉर्म हुए थे? सिस्टर्नी से, इसलिए RER को उसने क्या बोला? एर्गेस्टोप्लाज्म. ओके, RER वाज कॉल्ड अल्फा साइटोमेम्ब्रेन बाय जॉस्ट्रैंड, SJOSTRAND, जॉस्ट्रैंड, ठीक है. उसने RER को क्या बोला? इट इज अल्फा साइटोमेम्ब्रेन. साइटोमेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. अल्फा साइटोमेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है?
मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट स्टडेड विद द रिबोसोम्स, ठीक है, इसलिए उसने बोला अल्फा साइटो मेम्ब्रेन। नीजल्स ग्रेन्यूल्स और ट्राइगोइड ग्रेन्यूल्स, देखिए जब हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूरॉन जो है दैट हैज 3 पार्ट, 1 fibers which are many in numbers, right? They are known as the dendrites. The other one is single and long, which is considered as a axon. Dendrites का काम क्या है? It brings impulses towards the cell, और axon का काम क्या है? It take away impulses away from the cell, ठीक है, ओके। और इन दोनों के बीच का जो पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस है, that is known as साइटॉन और जोमा और सेल बॉडी। तो न्यूरॉन जो है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक पार्ट जो है ये वाला, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जोमा, सेल बॉडी या फिर साइटॉन। उसमें न्यूक्लियस के आसपास अगर आप देखिए तो बहुत सारे क्या है? फ्रेगमेंट्स या फिर ग्रेन्युलर पार्ट है। दैट फ्रेगमेंट्स और ग्रेन्युलर पार्ट इज नथिंग बट द नीजल्स ग्रेन्यूल। ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज नथिंग बट द नीजल्स ग्रेन्यूल, नेम बिहाइंड द साइंटिस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइगोइड ग्रेन्यूल भी हम बोल सकते हैं। और वो एक्चुअली क्या है? द ट्राइगोइड ग्रेन्यूल इज नथिंग बट द फ्रेगमेंट ऑफ RER एंड गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी और RER का क्या है? वो फ्रेगमेंट्स है ये सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ओके। देयर मेन फंक्शन, किसकी हम बात कर रहे हैं? RER की। मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करना दैट इज बेसिकली फंक्शन ऑफ रिबोसोम्स, लेकिन वो रिबोसोम्स जिस सिस्टम की सरफेस पे आ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? RER। तो RER का भी फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। अब वो प्रोटीन जो वेसिकल्स के फॉर्म में क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, फिर वो क्या बना रहे हैं? गोल्जी बॉडी बना रहे हैं, फिर वो उसको क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसाइज प्रोटीन। जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम भी किसका है? ER का ही है, क्योंकि वो वेसिकल्स फॉर्म हुए, उससे क्या बना? गोल्जी बॉडी, उससे क्या बनेंगे? वैक्यूल, और वो वैक्यूल में क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे, ठीक है, या फिर हार्मोन होंगे। वेसिकल्स फॉर्मेशन दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ RER। एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट RER इज दैट RER is more protein, it is more in protein secretory cell। ऐसे सेल होंगे कि जो प्रोटीन के सिक्रीशन के साथ कंसर्न है, उस सेल में RER जो है वो कैसे होंगे? ज्यादा। ऐसा एक एग्जाम्पल जो है वो हमने लिया है, और वो एग्जाम्पल जो है, ऐसा एक एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया है, और वो एग्जाम्पल जो है वो क्या है? जाइमोजन सेल। सेल का नाम क्या है? जाइमोजन सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज पेप्टिक सेल। उसको क्या बोल सकते हैं? पेप्टिक सेल। एंड दिस जाइमोजन सेल इज, वी कैन से दैट इट इज अ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कहां पे होता है? स्टमक में। तो वहां पे 3 टाइप के सेल है, वो आप 10th में पढ़ चुके हो। एक पेप्टिक सेल विच सिक्रेट पेप्सिनोजन, दूसरे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल विच सिक्रेट म्यूकस, एंड द थर्ड वन इज ऑक्जेंटिक सेल विच सिक्रेट HCl। तो यहां पे जाइमोजन जो इट इज नथिंग बट द पेप्टिक सेल, और उसका फंक्शन क्या होगा? इट सिक्रेट एंजाइम पेप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम सिक्रेट कर रहे हैं? पेप्सिनोजन। कौन? जाइमोजन सेल। और वो जाइमोजन सेल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। वैसे तो तीनों है, लेकिन यहां पे हम बात करें कि इसकी सेल विच सिक्रेट पेप्सिनोजन, एंड पेप्सिनोजन इज नथिंग बट द एंजाइम्स विच वर्क्स ऑन प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन करने में ये एंजाइम काम लगता है, लेकिन एंजाइम सारे किससे बने होते हैं? प्रोटीन। तो ये सेल जो है उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि RER जो है वो होगा। दूसरी एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन एंड द डाइजेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, तो कार्बनिक कंपाउंड कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अगेन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ओके। अब इसको इसी सीक्वेंस में आप याद रखो, ऐसा मैं आपको बोलूंगा, बिकॉज सबसे पहले जो कार्बनिक कंपाउंड जो है वो यूटिलाइज होगा एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन, सॉरी लिपिड। पहले कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो लिपिड, अगर लिपिड नहीं है तो प्रोटीन यूटिलाइज होगा, ठीक है। और वो यूटिलाइज हो जाएगा, उसका मतलब ये है कि डेथ पक्की है, ठीक है, ओके। तो यहां पे एक चीज याद रखो, ये मैंने रेस्पिरेशन की बात की, एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे पहले क्या यूज होगा? कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, ओके। दूसरी चीज, ये जो चारों के चारों कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, उसके अगर हम डाइजेशन की बात करें
तो बाकी के तीनों ठीक है, लेकिन जब हम प्रोटीन डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन डाइजेशन के जो एंजाइम्स होंगे इट इज ऑलवेज सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। वो इसलिए क्योंकि पूरा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, वो खुद भी तो क्या है, प्रोटीन से ही बना है, मसल से बना है, तो वो भी डाइजेस्ट ना हो, इसलिए जहां से भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो सीक्रेट होंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में ही होंगे। और इसलिए देखिए कि whenever we are talking about the enzyme which is related with the digestion of protein, उसके पीछे अगर सफिक्स आ रहा है जन या फिर आगे उसके सफिक्स आ रहा है प्रो, तो वो सारे एंजाइम जो कैसा है, इनएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिनोजन इनएक्टिव, एक्टिव फॉर्म कौन सा, पेप्सिन, विच इज कन्वर्टेड बाय HCl। HCl जो है वो पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में। ओके दूसरा ट्रिप्सिनोजन कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव, ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव। फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, तो पीछे जन फिक्स सफिक्स है तो वो कैसा है, इनएक्टिव। अब आगे प्रो है तो भी वो कैसा है, इनएक्टिव। फॉर एग्जांपल प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, राइट, वो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म। कार्बोक्सीपेप्टिडेज वो कैसा है, एक्टिव फॉर्म। ओके तो बेसिकली RER जो है वो ऐसे सारे सेल में ज्यादा होंगे कि जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा कहां पे होता है, जहां पे ज्यादा एंजाइम सिंथेसाइज होता है, जहां पे ज्यादा पेप्टाइड हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो जाइमोजन जो है वो हमने एक एग्जांपल लिया। सो हियर वी आर डन विद द RER। द नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। As we know that smooth endoplasmic reticulum do not have ribosomes on its surface and it will remain closer to the plasma membrane. ज़्यादा वो कहाँ पे रहेगा, towards the plasma membrane, right? It is not studded with the ribosomes and so its surface seems a smooth, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, smooth endoplasmic reticulum. Now myeloid body, see myeloid body is a bunch of SER, smooth endoplasmic reticulum, in a cell, और वो कौन से सेल में होगी, दिस माइलॉइड बॉडी इज फाउंड इन द रेटिनल सेल एंड द रेटिनल is one of the, we can say that the membrane or one of the layer of eyeball which is related with the receptive part of the sunlight, ठीक है, और इमेज क्रिएशन वो करता है। तो जो फोटोन को रिसेप्टिव पार्ट है, फोटोन को रिसेप्टिव कर रहा है, रिसेप्ट कर रहा है, वो जो सेल्स हैं किसके, रेटिनल मेम्ब्रेन के, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेटिनल सेल, ठीक है, उसमें एज अ फोटो रिसेप्शन जो वो क्या काम, कौन काम करता है, SER, और वो SER का जो बंच है इट इज नोन एज माइलॉइड बॉडी। याद रखना माइलॉइड बॉडी जो है वो वापस हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में। ओके डेस्मोट्यूब्यूल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। डेस्मोट्यूब्यूल इज नथिंग बट द ट्यूब्यूल ऑफ SER विच इज पेनिट्रेटेड इनटू अ पिट। whenever we are talking about the pit, that means we are talking about the adjacent cell of प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल में दो एडजेसेंट सेल में जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगा, दैट फॉर्म व्हाट, पीट, एंड टू पीट ऑफ टू एडजेसेंट सेल इज ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, और वहां पे SER जो हो क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट, एंड दैट SER इज बेसिकली फॉर्म ऑफ व्हाट, ट्यूब्यूल, एंड दैट इज व्हाई it is known as desmotubule and that part is known as plasmodesmata through which two adjacent cells perform exchange of material. Okay, now the very important part, sarcoplasmic reticulum, right? In early stage of this chapter I told you that whenever we use term sarco it is related with the muscles, right? So sarcoplasmic reticulum is nothing but the endoplasmic reticulum, basically it is a SER, smooth endoplasmic reticulum, which is present inside the muscle cell, right? Okay, if we talk about the muscle cell, this is a muscle cell, right? And the plasma membrane of muscle cell is known as sarcolemma. What it is called? Sarcolemma. Cytoplasm of muscle cell is known as sarcoplasm, right? And SER or any ER, endoplasmic reticulum, is known as sarcoplasmic reticulum, means endoplasmic reticulum which is present inside the muscle cell. Okay, now see here we have one axon and bulb. This is nothing but the axon and bulb, right? And it is a axon and bulb of motor neuron, right? Basically if we talk about the neuron, there are two types of neuron, and nerve are of three type, neuron are of two type. One is sensory neuron which brings impulses from sensory organ towards the CNS, means central nervous system, either it would be brain or spinal cord. Okay, now
द नेक्स्ट वन इज मोटर न्यूरॉन विच टेक दैट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सीएनएस टूवर्ड्स द टारगेट ऑर्गन, मतलब स्पाइनल कोड या फिर ब्रेन से इंपल्सेस कहीं बाहर लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स द टारगेट ऑर्गन, उसको हम क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन की बात हुई, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। नर्व 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी सेम फंक्शन, मोटर सेम फंक्शन, मिक्स जिसमें एक मोटर न्यूरॉन होगा एक सेंसरी न्यूरॉन होगा। डिटेल में हम आगे देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये मोटर न्यूरॉन है, उसका ये क्या है, एक्सोन एंड बल्ब। दैट एक्सोन एंड बल्ब विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द मसल्स, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। यहां पे भी हम ये बोल सकते हैं कि साइनेप्स में जैसे दो सक्सेसिव न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, वैसे यहां पे एक गैप है, एंड दैट गैप इज नथिंग बट द NMJ। वो गैप जो है वो क्या है, इट इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है वो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो व्हेनेवर द impulses reach to the axon and bulb, that axon and bulb releases what, it releases neurotransmitters, right, in this NMJ. And once this neurotransmitter is ejected from the axon and bulb, immediately this sarcolemma, before that it is in resting potential, but now it receives impulses, and because of that that sarcolemma is generate action potential, right. This sarcolemma form a invagination. Invagination means towards the cytoplasma, towards the inner side, right. And that invagination is nothing but the T tube. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पेनिट्रेटेड पार्ट जो है, इट इज नोन एज टी ट्यूब। क्या बोलेंगे हम इसको, टी ट्यूब। सो थ्रू दिस टी ट्यूब वी कैन से दैट द सार्कोलेमा पास इज एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सरफेस टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक रीजन। और ये टी ट्यूब के साथ देखिए क्लोजली कनेक्टेड कौन सा ऑर्गेनल है, क्लोजली कनेक्टेड है यहाँ पे SER। देखिए अब यहाँ पे SER में आपको बहुत सारे डॉटेड पार्ट दिख रहे हैं। दैट डॉटेड पार्ट इज नॉट अ रिबोसोम्स, वो रिबोसोम्स नहीं है, वो सारे डॉटेड पार्ट जो है इट इज अ कैल्शियम। बिकॉज हम ये जानते हैं कि SER इन मसल्स इज अ ग्रेट रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयन। इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, कैल्शियम आयन होंगे, तो ये कैल्शियम आयन है, ठीक है। इट इज नॉट अ रिबोसोम्स, इसलिए ये क्या सा है, SER ही है। ओके तो जैसे ही सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वैसे ही टी ट्यूब में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो अब किसके मेम्ब्रेन में आएंगे, SER के, और वो SER को हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे ही वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, this sarcoplasmic reticulum releases calcium ion into the sarcoplasm, means a cytoplasm of muscles। और वहां पे actin fibers जो हैं that will slip over the myosin fiber, और उसको हम क्या बोलेंगे, sliding movement। So release of calcium ion from the SER is a trigger for the contraction of muscles। और contraction of muscles में पहला जो process है that is sliding movement। sliding movement means nothing but the slipping of actin filament over the myosin filament, ठीक है। चलिए तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ मॉडिफाइड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स विच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ मोटर नर्व इंपल्सेस एंड रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड। अब ये आपको पता चल गया कि मोटर नर्व जो उससे कंडक्शन कैसे हो रहा है, स्लाइडिंग मूवमेंट जो कैसे हो रहा है। अब दूसरा पार्ट है, अगर इफ यू परफॉर्म अ विगोरियस एक्सरसाइज, due to vigorous exercise, whatever the requirement of muscles for the normal respiration, that would not be satisfied, right. In that case muscles have to perform what, anaerobic respiration। तो muscles जो है वो तब कौन सा respiration करेंगे, anaerobic respiration। और अगर respiration जो वो anaerobic हुआ, तो हम ये जानते हैं कि anaerobic respiration से क्या डेवलप होगा, lactic acid डेवलप होगा। और वो lactic acid किस में डेवलप होगा, इनसाइड द मसल्स। जब कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट सेल में होता है, दैट फॉर्म इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। लेकिन जब कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल सेल में होगा, मसल सेल कौन सा है, एनिमल सेल, तो इट फॉर्म लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड जो है, accumulation of the lactic acid inside the muscles that leads to that muscles in a fatigue stage, मतलब नया कॉन्ट्रैक्शन अब उसमें नहीं हो सकता है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट दिस लैक्टिक एसिड शुड बी रिमूव फ्रॉम दिस सेल, मसल से वो बाहर आ जाना चाहिए। और वो काम जो है वो भी कौन करेगा, SER करेगा। कौन करेगा, SER। फिर ये लैक्टिक एसिड का होगा क्या, दैट लैक्टिक एसिड देन आफ्टर इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में। लेकिन ये प्रोसेस यहां पे नहीं होगी, दैट प्रोसेस अकर्स इन लीवर। किस में होगा, वो लीवर में। और उस साइकिल को, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोराई साइकिल, ठीक है।
जिसमें ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज, ग्लूकोज में से लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्म होगा, वो हम देखेंगे इन अ चैप्टर ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। चलिए, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड SCR ऑफ मसल सेल विच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ मोटर नर्व इंपल्सेस, वो हमने पढ़ा, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड। लास्ट पॉइंट जो है दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिच इन कैल्शियम आयन। अभी हमने देखा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें क्या होंगे, कैल्शियम आयन जो होंगे, रिच इन कैल्शियम आयन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब कैल्शियम आयन जो है वो किस में रिलीज होंगे, सार्कोप्लाज्म में, मीन्स साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स सेल, राइट। ओके, सो नाउ लास्ट जो पॉइंट है दैट इज SCR इज एबिडेंट इन लिपिड प्रोड्यूसिंग सेल। जहां पे लिपिड जो है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ऐसे सेल में हम ये बोल सकते हैं कि ये मतलब किसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे सेल जो हैं उसमें SCR जो है वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एडिपोसाइट्स, ठीक है, इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है दैट सिक्रीट, एड्रिनल के दो पार्ट है, एक एड्रिनल मेड्यूला, दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है दैट सिक्रीट 3 हार्मोन, कौन कौन से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। कौन कौन से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। ऑल दीज 3 हार्मोन्स आर स्टीरॉयड हार्मोन, राइट। और इसलिए वहां पे क्या होगा, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, बिकॉज SER इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टीरॉयड, ठीक है। So basically it is found in a cell which are related with the lipid synthesis like adipocytes, like adrenal cortex and the cells of thyroid gland। वो इसलिए क्योंकि thyroid gland जो है that secrete what? It secrete thyroxine। thyroxine जो है वो भी कैसा है, steroid hormone, ठीक है। So here we are done with the 2 type of ER, that is smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. In next part we will discuss about the overall function of the ER. I hope you like this lecture, and if yes, you can share that information with your friends. We have very great team to we can say that to deliver a mark of up to the mark of a subject details and a content which helps you to score more and more and to generate a good rank. So you can stay with us with to subscribe our channel, that is Advait Achievers, and you can also download our app, that is Advait Achievers, from Play Store. So thank you so much. Love you all. Stay tuned. Vidyarthi Devo Bhava. Jai Bharat.